Hello students, I am Monica Soul from MB International School, Nayagaon. Today we will be doing the 13th chapter of history, Gandhian era. Yes, Gandhian era. Now this is when Gandhiji had come to India. He was in South Africa. He had gone for the practice of barristers thing. This thing. Now here we will learn about him. Emergence of Gandhi, Mahatma Gandhi, Government of India Act 1919, Rowlatt Satyagraha, Jallianwala Bagh massacre, Simon Commission, re-emergence of revolutionary activists, demand for dominant status, civil disobedience movement, Second World War, national movement, Muslim League, demand for Pakistan, Quit India movement, Subhash Chandra Bose and INA towards independence. And now here what we will learn about nationalist movement. Just now you had learned, and in that you saw that how the freedom fighters were fighting for the freedom of Indians. Here Gandhiji also was fighting for the freedom of India. Now how he was doing that, let's see. The father of the nation, Mahatma Gandhi, was one of the greatest men with dedicated his whole life for the service of mankind and served for our nation. During this period known as Gandhian era, 1919 to 1947, he led the national freedom movement. Even when he was in jail, he made strategies to pave the way for India's freedom. गांधी जी ने बहुत सारी कोशिश करी थी फ्रीडम के लिए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, एंड दो ही वॉज इन जेल, फ्रॉम देयर ऑल्सो ही वॉज मेकिंग द वेज दैट हाउ वी विल बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. वो वायलेंस तो चाह नहीं रहते, एंड नॉन वायलेंस से एंड देन वी वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. दैट ही वॉन्टेड टू सी कि ये इसको रास्ता वो निकाल लेते कि किस तरह से हम फ्री हो जाएं. Emergence of Mahatma Gandhi. The national movement of Indian underwent a major change with the arrival of Mahatma Gandhi. It becomes a mass movement. People from almost all sections of society joined the national struggle. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. He studied law in England and went to South Africa to practice it. Law उन्होंने कहाँ पढ़ी थी? इंग्लैंड में, और प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे. It was during this stay when that he led the Indian residents of South Africa to protest through non-violent means against the discriminatory racial policies. अब वहाँ पर जो racial policies जो फ़र्क चल रहा था वो उन्होंने वहाँ देखा था, तो वो क्या बोल रहे, सोच रहे थे कि ये चीज़ क्यों चल रही है, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था. ब्लैक और वाइट के बीच में जो झगड़ा वहाँ चल रहा था, दैट ही डिडंट लाइक. सो उनको वायलेंस नहीं करते, उनको वो सोच रहे थे कि इससे फ्री कैसे होना चाहिए. दैट ही वॉन्टेड टू लर्न. ही इवॉल्व हिज पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह. वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की पॉलिसी अपनाई थी. Satya means truth and Agra means insistence of holding firmly to, which was based on ahimsa, non-violence and truth. The return to India in 1915. Gandhi ji India कब आए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में. And traveled throughout the country in order to know about the people, their needs and overall situation. वो फिर पूरी इंडिया में वो पहले घूमे, उनको पता करने के लिए कि यहाँ पर इंडियंस के साथ क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स इनके साथ क्या कर रहे हैं. So he established an ashram at Sabarmati near Ahmedabad in Gujarat. वो एक आश्रम में वहाँ पर जाकर रहने लग गए, जहाँ पर साबरमती अहमदाबाद है वो गुजरात में. Where people irrespective of class, caste and greed वो welcome. अब वहाँ पर उन्होंने कोई भी कास्ट और क्लास किसी में फ़र्क नहीं करते थे. हर कोई आके उनसे बात करता था, डिस्कस करता था प्रॉब्लम्स की, और वो सॉल्व करते थे उसको. His earliest interventions were in local movements in चंपारण, बिहार. सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह मूवमेंट था वो चंपारण बिहार से था. खेड़ा गुजरात एंड अहमदाबाद गुजरात. ही ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल सत्याग्रह कैंपेन्स फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ चंपारण. इंडिगो के लिए, इंडिगो की खेती थी वहाँ पर, नील की. फॉर दैट ही फॉट ओवर देयर विद द कल्टिवेटर्स ऑफ चंपारण. उनको हक दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो उनके ऊपर बंदिशें लगा रखी थी फॉर टैक्स एंड एवरीथिंग, फॉर दैट ही फॉट. द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा एंड द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद, इन सब के लिए उन्होंने फाइट करा था और उनको जस्टिस दिलाई थी उन्होंने ब्रिटिशर्स से. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and the Rowlatt Act Satyagraha. Government of India Act of 1919 were popular known as Montague-Chelmsford reforms were named after the Secretary of State. यहाँ पर Montague and the Viceroy Chelmsford, it was bought out by the British government in 1919 after the First World War with an aim to expand participation of Indians in the governance of India. The Central Legislative Council was made bicameral, that is having 2 houses. However, this act failed to meet the expectations of the Indians. अब यहाँ पर ये जो उन्होंने फॉर्म करा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसमें उन्होंने क्या बोला था कि 2 हाउसेज बनाएंगे और वहाँ पर अपन इसको चलाएंगे गवर्नमेंट को. बट ये एक्ट जो था
था वो इंडियंस के एक्सपेक्टेशन से में फेल हो गया, उनको इंडियंस को ये चीज़ समझ में नहीं आई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन पास द रॉलेट एक्ट इन 1919, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया था 1999 में, बाय विच द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट एंड पुट हिम हर इन प्रिजन। अब उन्होंने इस एक्ट में क्या पास करा था कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर जाएगा तो उसको इम्प्रिजन किया जाएगा विदाउट ट्रायल, उनसे कोई क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं कर सकेगा और उसको पकड़ के वो जेल में डाल देंगे। एंड दिस एक्ट वाज वाइडली क्रिटिसाइज। अब ये एक्ट तो क्रिटिसाइज किया इंडियंस ने बोला कि दिस इज़ नॉट राइट, ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। Mahatma Gandhi called for a satyagraha on 6th April 1919, urging people to regard this day as a day of non-violent opposition to Rowlatt Act. अब गांधी जी ने जो 6 अप्रैल सत्याग्रह करा, उन्होंने क्या बोला, बिना वायलेंस के अपन को इस एक्ट के खिलाफ लड़ना है। The Rowlatt Satyagraha was first major all-India struggle against the British. Even though it was largely restricted to the cities, a large number of strikes and demonstrations were held and British suppressed the movement brutally. अब यहाँ पर जो ये Rowlatt Act cities में तो था ही सही, पर बहुत सारी जगहों में demonstrations और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए और ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस करते थे, उन लोगों को टॉर्चर करने लगे थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और इस एक्ट के खिलाफ कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो उसको रोकते थे। अब इसके वजह से Rowlatt Act की वजह से एक बहुत बड़ा मैसेकर जलियनवाला बाग में हुआ था एंड वो हुआ था ऑन 10th अप्रैल 1919। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किटलू two local leaders in अमृतसर were arrested in connection with the Rowlatt Act movement। अब इन दो जो लीडर्स थे अमृतसर में, उनको अरेस्ट कर दिया था Rowlatt Act मूवमेंट के खिलाफ, वो लोग आवाज़ उठा रहे थे इसलिए। This arrest was followed by an attack on symbols of British authority, the town hall, the post office and other। अभी क्यों इनको जब पकड़ा तो सारे इंडियंस वहाँ जो अमृतसर में जो लोग थे वो लोग इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके जो सिम्बल्स थे सब तोड़ने लगे और वायलेंट हो गए थे। A public meeting was held on 13th April 1919 on the day of बैसाखी। अब ये जो था, इन्होंने क्या करा था, द आर्मी वॉज कॉल्ड, इसको रोकने के लिए, जो वायलेंट हो गए तो उन्होंने आर्मी बुला ली ब्रिटिशर्स ने इनको स्टॉप करने के लिए। अब जब वहाँ पर बैसाखी फेयर था जलियनवाला बाग में अमृतसर में, प्रोटेस्टर्स मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन हैड गैदर टू प्रोटेस्ट पीसफुली अगेंस्ट द अरेस्ट। अब वो लोग पीसफुली वहाँ पर ये इस अरेस्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर नॉट डूइंग एनी वायलेंस, दे वर जस्ट प्रोटेस्टिंग, दे वर they had held a meeting over there कि हमको किस तरह से इनको निकालना चाहिए जेल में से। बट what had happened, it was a large ground with only one narrow gate, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर बहुत छोटा सा एक गेट था। जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ द फोर्स एट अमृतसर, केम टू द पार्क विद सम सोल्जर्स। अब जनरल डायर जो थे, जो मिलिट्री कमांडर थे ब्रिटिशर्स के, वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ आके वो जो गेट था, जो छोटा सा गेट था, उसको ब्लॉक कर लिया और वहाँ पर उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। दी ऑर्डर, और जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, उनके पास कोई भी आर्म नहीं था, वो लोग कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो किल्ड एंड मैनी वो क्रिटिकली वुंडेड। और उसमें वो जो फायर ओपन करा तो उससे बहुत सारी जो लोग वहाँ पर मारे गए जो कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, एंड दे वो किल्ड। दिस मैसेकर शॉक द एंटायर नेशन। इससे बहुत ज़्यादा शॉक लगा नेशन को, इंडिया को, कि ये क्यों किया इन्होंने। हम लोग, वो तो वायलेंट भी नहीं थे, तब भी उन्होंने बिना वजह लोगों को, जहाँ पर लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, उनको मार दिया। मार्शल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड इन पंजाब। तब मार्शल लॉ डिक्लेयर करी गई। देयर वर वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट बाय द पीपल। ऑल नेशनल लीडर्स कंडेम्ड दिस घास्टली एक्ट। एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप द किंग नाइटहुड कन्फर्म्ड ऑन हिम बाय ब्रिटिश। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया गया था वो उन्होंने वापस दे दिया। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि आपने ये बहुत ही गलत काम करा है, तो इसके खिलाफ उन्होंने सबने आवाज़ उठाई। और दीज पीपल वो वेरी मच फेल्ट बाय दिस इंसिडेंट। उनको सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हम तो वायलेंट नहीं हो रहे, बट ब्रिटिशर्स आर बिकमिंग वायलेंट।